Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Krishna, Karishma Mataji and Karishma Mataji have joined. So, Hare Krishna and welcome all to today's session, online session of Bhagavad Gita. So, today, आज जो है हम लोग श्लोक का नंबर 67 ऑनवर्ड्स हम लोग लेंगे हम लोग एंड विल सी कि जितना ले सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे. तो प्रेयर से हम लोग चालू करते हैं. तो we'll pray to Prabhupada, all gurus and Vaishnavas. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ठीक है, तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं हम लोग रिकैप करेंगे पहले कि हमने पिछले लास्ट सेशन में क्या देखा था. तो वुड एनीबॉडी वुड लाइक टू लीड ऑन दिस? लास्ट वीक हमने क्या देखा था? जी माता जी, पूजा माता जी, आशीष जी. Hare Krishna Prabhuji. Actually, I was traveling to Noida yesterday, so I couldn't last week, so I couldn't take down the notes. Okay, but still whatever you remember. One point, Prabhuji, that 2.65. I think you were mentioning about how if we are in Krishna consciousness, then the threefold miseries. That is, if I recall right, it is one that is caused by nature, or one caused by other people, and one because of our own karma, I think. So Adi Daivik, Adi Bhautik, and Adhyatmik, maybe material. Okay. So I think these are the threefold miseries, and if we are situated in Krishna consciousness, then it is possible to overcome these threefold miseries. Okay, one is one type of misery is caused by devatas, like tsunami or too cold or some whirlwind or something like that. So that is caused legal by terms we call it act of God or force majeure. Yeah, you can say some. Okay. Yeah. Some act of calamity, something has taken place, some famine or something. So that is one Adi Daivik, which is caused by gods, demigods. And second is Adi Bhautik, which is caused by other living entities. And third is Adhyatmik. We create our own selves, like we start imagining something. What is happening with my son? What is happening with my wife? Whether they are okay, they're not okay. So unnecessary we create. They must be fine, enjoying, they're happy. Unnecessary, but we keep thinking about them and we start creating our own miseries. So that are three kinds of thing. And other than that, there is Janma, Mrityu, Jara and Vyadhi, which is there for everybody. Nobody can, even if somebody doesn't have any issue, maybe he has financially he's very good, he has good health, and
everything. He's self-sufficient in all ways. But Janma, he has to take birth, he has to get old, he has to get diseased, and he has to die. This no one can escape. तो ये जो चार हैं, other than this threefold miseries, they have to suffer. This was one thing. And in 66 we have seen that हमने जो भगवान से connected नहीं है, he will never be peaceful, and a person who is not peaceful, he can never be happy. So Lord is giving, you can say, a kind of a sutra that अगर खुश होना है तो peaceful होना या शांत होना बहुत जरूरी है. And for regarding that we have seen shloka number 5th chapter, shloka number 29. That Lord is the Bhoktaram, is the Bhokta, and Sarva Loka Maheshwaram, and he is the best friend. If three things we remember, then we'll always be peaceful. We'll not be greedy for anything, we'll not be worried by anything, and we'll always be peaceful. And if we are peaceful, automatically we are happy. This is what Lord says in shloka number 66. तो आज हम लोग श्लोका नंबर 67 देखते हैं. हम लोग श्लोका नंबर 67. मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग भी अगर रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं. इंद्रियाणाम ही चरताम. हरे कृष्णा. इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते. यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञाम्. हरति प्राज्ञाम् वायुर्नाव इवाम्भसि. वायुर्नावमेवाम्भसि. I'll repeat once more. इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञाम् वायुर्नावम इवाम्भसि. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry a man's intelligence. तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर एक भी हमारी इंद्रियाणाम ही चरताम, जो अगर विचरण कर रही है, एक भी इंद्री, हम लोग को पता है भी है हमारे पास 5 प्रकार की इंद्रियां हैं. Does anybody remember that? Yeah. Jaya. Prabhuji, it is eyes, nose, hands, ears, and Mouth. Mouth. Yes, Prabhuji. And skin. So eyes, nose, ears, mouth and skin. So these are the senses. और इसमें से एक भी इंद्री अगर लूज है, हमारी इट इज नॉट अंडर कंट्रोल, तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि वायु नाव इवाम्भसि तदस्य हरति प्राज्ञाम. उसका बुद्धि ऐसा हर लिया जाएगा. इट इज सो स्ट्रॉन्ग. भगवान एक एनालॉजी दे रहे हैं कि हमने देखा है मूवीज में, कभी कभी देखते हैं हॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड मूवीज में कि बोट जो है, मतलब वो मोटर वाली बोट नहीं, इट्स नॉर्मल बोट विद दैट स्टाफ. तो उसमें वो लोग जब वो लगाते हैं और जैसा जोर से जब हवा आती है, मे बी द बोट वांट्स टू गो टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन अगर हवा साउथ में चल रही है तो मतलब फोर्सफुली उसको ले जाती है बोट का. या उसमें इवन इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर मोटर भी है तो मोटर भी कुछ नहीं कर पाई. लिव अबाउट द पीपल, मनुष्य का तो छोड़ ही दो, इट इज सो स्ट्रॉन्ग. तो इतना स्ट्रॉन्ग हवा है कि इट विल बी फोर्सिबली कैरी अवे. तो यही कह रहे हैं कि एक भी अगर इंद्री हमारी लूज पड़ती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये होगा जैसे एक हवा जो है नाव को खींच के लेके जाती है जबरदस्ती, वैसे ही हमारी बुद्धि भी जो है वो खींच ली जाएगी. और इसके लिए हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है. और अगर हम लोग देखें तो भगवान कृष्ण ऑलमोस्ट
you can say from श्लोका नंबर 60 ऑनवर्ड्स भगवान इसी पे चर्चा कर रहे हैं। श्लोका जो सेंसस है कि सेंसस कितनी पावरफुल है, सेंसस को कंट्रोल करना है और इसको हमारे वश में रखना है। तो यहाँ पे सेंसस पे बहुत इंपॉर्टेंस मतलब भगवान जो है दे रहे हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट श्लोक व्हाई इज ही डूइंग दैट। तो सेंसस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई सोचे कैसे पतन होगा मेरा, कैसे मेरा बुद्धि खराब हो सकता है। तो इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ जैसे राक्षस लोग थे, जब वो किसी सुंदर स्त्री को देखते थे तो तुरंत जो था उनका माइंड इज लॉस्ट, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और इतना मतलब पीछे पड़ते हैं कि दे लिटरली गेट किल्ड बाय सम देवता। और जैसे बहुत अच्छे हमारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं कि जैसे एलिफेंट होता है, एलिफेंट को कैसे पकड़ते हैं? बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ टच। क्या करते हैं वो, उसके सामने से जानबूझ के एक जो शी एलिफेंट होती है, एक जो मादा होती है, उसको जानबूझ के छोड़ते हैं, विच इज ट्रेंड। और वो ऐसे रास्ते से जाती जहाँ से वो उस हाथी को वहाँ पे बड़ा खड्डा हो, एक गड्ढा गाड़ के रखा होता है, वहाँ वो कवर करके रखते हैं घास से, तो वो वहाँ से जाती है और ये वहाँ पे बेचारा वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है और उस खड्डे में गिर जाता है एंड ही स्टैप। तो ये जो सेंस ऑफ टच है उसके कारण उसका बुरा हाल होता है। फिर सेंस ऑफ सीइंग जो हमारी है, आईज है, वो हम लोग देखते हैं। तो पतंगे का एग्जांपल देते हैं शास्त्र की। पतंगा जो है, दैट मॉथ, वो जब अग्नि को देखता है, सो मच बिविल्डर्ड, वो इतना आकर्षित हो जाता है कि वो पतंगा उस आग में चले जाना चाहता है, उसमें लीन होना चाहता है उसमें। एंड वो क्या होता है, वो अगर आग में वो चला गया तो ही इज डेड। तो ये एक उदाहरण है इसमें। और सेंस ऑफ हियरिंग, हमारी जो कान है, तो कान इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। और हम लोग देखते हैं जो डियर होता है, उसको शिकारी जो कैसे पकड़ता है, शिकारी इज नोवेयर इनसाइड डियर, बट लेकिन शिकारी जो है वो अच्छा सा एक कोई उसके इंस्ट्रूमेंट पे धुन बजाता है और वो हिरण जो है, वो डियर, वो आकर्षित होता है, ये कहाँ से इतना सुंदर म्यूजिक है, सो मच अट्रैक्टेड कि उसको पता ही नहीं यहाँ पे अभी क्या होने वाला। और जैसे ही वो आता है, उस शिकारी जो है तुरंत उसको मार देता है। और हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे शास्त्रों में भी उदाहरण है। जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि वो सो मच मतलब सच्चे ग्रेट, इतने कैलिबर के वो तपस्वी थे कि 60,000 वर्ष तक तपस्या कर सकते थे। और वो कर रहे थे, सडनली जो थे आंखें बनती, सब कुछ था, वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं एकदम पूरा लीन होके। लेकिन सडनली जो है वो मेनका आ जाती है और पता है मेनका को कि ये तो देख नहीं रहे, तो कैसी तरह आकर्षित करना। तो शी स्टार्ट्स डांसिंग और उसका जो पायल का जो 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 छुन 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 जो म्यूजिक होता है उसका, वो सुन के आकर्षित हो जाते कि उनका जो कान था दैट वो उनको फंसा देता है। और वैसे ही सौबरी मुनि है, सौबरी मुनि भी वो इतने ग्रेट थे कि पानी के अंदर वो जाके तपस्या, हम लोगों को तो मतलब बाहर भी सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन सौबरी मुनि वो पानी के अंदर जाके एंड फॉर hundreds of years he could do तपस्या विद इन द वाटर। और वैसा कर रहे थे, आराम से बैठ के तपस्या कर रहे थे। जस्ट उन्होंने आंख खोला, he saw 2 मच्छियों को, फिश को मेट करते हुए देखा, तुरंत उनके मन में इच्छा जागृत हो गई और तुरंत वो वहां से तपस्या छोड़ के चले गए। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमको दिखाते हैं कि इंद्रियां जो हैं अगर अनकंट्रोल्ड है, अगर हमारे वश में नहीं है, तो कैसे हम लोग का पतन हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू कीप इन कंट्रोल। और उसका एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने। डज एनीबॉडी रिमेम्बर दैट? भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था भगवद गीता में, हाउ टू कंट्रोल। focus on
focusing ourselves on the Krishna consciousness, that is where we can control our indriya. या बट एन एनालॉजी, एक एग्जांपल दिया था कि Okay. कैसे कंट्रोल करना है। वेरी नाइस एग्जांपल। जैसे ये अभी नाव का उदाहरण दिया है, वैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि लाइक दिस वी हैव टू कंट्रोल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू Frog वाला, वो frog, tortoise वाला यू आर example. क्लोज। यस, Tortoise वाला tortoise। वेरी गुड। तो भगवान सी हाउ इंटेलिजेंटली भगवान जो है कनेक्ट करते जा रहे हैं कि जो है, ही गिव्स एन एग्जांपल, एक उदाहरण भी देते हैं कि टॉर्टोइज जो होता है उसका शेल होता है, इतना हार्ड होता है कि नोबडी कैन डू एनीथिंग। शेर भी आ जाए तो वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ इट्स सो हार्ड। तो एलिफेंट भी उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, इट्स सो हार्ड। बट उसका एक इंद्रिय अगर उसका बाहर निकल गया, उसने सर बाहर निकाल दिया या पैर बाहर निकाल दिया तो इज लॉस्ट। तो वैसे ही हमारा भी जो है इंद्रिय जो है, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। अगर नहीं कंट्रोल में है देन हमारा पतन हो जाएगा। सो लॉर्ड इज वेरी इंटेलिजेंटली ही इज कनेक्टिंग ऑल दिस। वो एक उदाहरण दे कि ताकि हम लोग समझ सके। खाली ये बोलेंगे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो तो नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए वो टॉर्टोइस का उदाहरण देते हैं कि कैसे कछुआ जो है कैसे अपने आप को बचा के रखता है, वैसे हमको बचा के रखना है। तो ये मैसेज हम लोग को इस श्लोका में मिलता है, श्लोका नंबर 67 में। एंड हम लोग नेक्स्ट श्लोका देखते हैं, श्लोका नंबर 68। इफ पॉसिबल अगर आप लोग अगर अपना कैमराज ऑन कर सकते हैं तो इट विल बी गुड। नहीं तो मुझे लगता है मैं अपने स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। इफ पॉसिबल यू कैन कीप इट ऑन। हम लोग श्लोका नंबर 68 लेते हैं, श्लोका नंबर 68। थैंक यू जस्ट शेयर। श्लोका नंबर 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः मैं रिपीट करता हूँ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पे भगवान इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग देखते हैं। ट्रांसलेशन पर्पट बाय जॉन एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। Therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिसने अपने इंद्रियों को वश में रखा है वो जो है certainly, वो पक्का जो है वो एक he is a man of steady intelligence, यानी प्रज्ञा जो प्रतिष्ठा जो है उसकी, यानी बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो पूर्ण तरह से प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस प्रतिष्ठित है, यानी पूर्ण तरफ से स्थित है। तो ये मैसेज हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें इंद्रियों को अब कह रहे हैं कि कंट्रोल करना। अगर कंट्रोल करेंगे तो देन विल बी अ पर्सन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, या जो बोलते हैं ना एक वाइजफुल जो एक व्यक्ति है, वाइज पर्सन, तो वो हम लोग कहलाएंगे हम लोग। तो अगर हम लोग देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, श्लोका नंबर 60 से भगवान जो है सेंसेस के ऊपर जोर देते हैं कि सेंसेस कितनी पावरफुल है। सेंसेस को नाव से कंपेयर किया है, तो वो कैसे भटका सकती है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट यहाँ पे भगवान ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं
कि भगवान बोल रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो। तो वो कैसे करेंगे? मन भगवान में कैसे लगाएंगे? मन भटकता क्यों है? इंद्रियों की वजह से। बिकॉज ऑफ सेंसेस वी लूज आवर कंट्रोल। तो सारा जो फोकस है हमारा जो है वो सेंसेस पे होना चाहिए। सेंसेस अगर कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिकली मन कंट्रोल में आएगा, और मन कंट्रोल में है तो हम लोग भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो ये दिस इज द लिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए यहाँ पे जैसे अगर मतलब किसी शत्रु से युद्ध करना है, कुछ वैष्णव आचार्य इनको ऐसा उदाहरण देते हैं कुछ वैष्णव की, अगर एक कमरा है, उसमें कहा है आपको युद्ध करना है या बड़ा मैदान है, लेकिन पूरा अंधेरा है, आपको पता ही नहीं क्या शत्रु कहाँ पे है, तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइट? किसके ऊपर बंदूक चलाएंगे, किसके ऊपर बाण चलाएंगे? हम लोग को पता ही नहीं है शत्रु कौन है, कहाँ पे है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर भक्ति करनी तो करना क्या है मुझे? बाहर चले गए, ये भी खाने का मन हो रहा है, ये भी करने का मन है, थोड़ा पिज्जा दिख गया, थोड़ा चिकन दिख गया, ये किसी को शराब का मतलब जो है ही लाइक्स अल्कोहल, तो वो बोलता है यार बहुत दिन हो गए पिए नहीं, तो ही इमीडिएटली गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो उसको कंट्रोल करना है, और भगवान इसीलिए कह रहे हैं हम लोगों को कि इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो मन भक्ति में, जो ये सब चीजों में लगते हैं वो भक्ति नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन इसके लिए हम लोग देखते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धया। हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति है जो भक्ति करने के लिए आता है। इट इज नॉट एवरीबडी। इसके लिए हम लोग देखें, मंदिर में जाए तो बड़ा भीड़ नहीं होता, मतलब इतने 130 करोड़ की संख्या है, तो कितने लोग मंदिर में जाते हैं, कितने लोग उसमें से भी कितने लोग एक्चुअल भक्ति? बहुत से लोग तो सिर्फ हे भगवान मुझे ये चाहिए, हे भगवान मुझे वो चाहिए। एक्चुअल इट इज नॉट भक्ति, ये एक बिजनेस है। भगवान मैं आपको मुझे ये दे दो, मैं आपको ये चढ़ाता हूँ, वो चढ़ाता हूँ। दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज सॉरी नॉट लव, दिस इज बिजनेस। तो भक्ति करने के लिए हम लोगों को पूरा फोकस्ड रहना पड़ेगा। एंड ये कैसे करेंगे? भगवान यहाँ पे हमारे जो शत्रु है उसका एड्रेस दे रहे हैं हम लोगों को कि आवर एनिमी इज आवर सेंसेस। तो इसके ऊपर तुम पहले काम करो। यू नीड टू फोकस ऑन योर मेन जो रूट कॉज है हमारा, हम लोग क्यों फंसे हुए हैं हम लोग, तो वो भगवान यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे देन विल बी एबल टू प्रोग्रेस स्लोली। हम लोग भक्ति में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो ये मैसेज हम लोगों को देते हैं। और सेंसेस को जो है हमने देखा अभी तक, जैसे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो कोई सोच सकता है कि क्या जरूरत है, मैं अपना जैसे अजामिल था, उसने सारा जिंदगी पाप किया और लास्ट में मैं भी खाली भगवान का नाम नारायण नारायण बोल के मैं भी अपना काम कर लूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी नीड, जैसे उदाहरण देते हैं ना कि मैराथन जो स्प्रिंटर होता है जो रनिंग करता है, तो ही विंस द मैच बाय फ्रैक्शंस। पहले तो मिनट्स में और सेकंड्स में, अभी तो फ्रैक्शंस में काउंट करते हैं। तो वो क्यों होता है? बिकॉज वो ऐसा नहीं कि एक दिन पहले उसने भागना शुरू किया, प्रैक्टिस कर रहा है सडनली एंड इज विनिंग। नो, उसके पीछे उससे 5 साल, कम से कम 10 साल की मेहनत होती है वो। देन ओनली ही विल बी एबल टू प्रोग्रेस। तो वैसे ही हम लोग भी ऐसा नहीं है कि यार अभी क्या, अभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। ये क्या टाइम है? अभी तो ऐश करने का टाइम है हमारा। लेट्स हैव थोड़ा, लेट्स बूज, लेट्स डांस, बट इट इज नॉट वेट। अंत समय में जो पूरा लाइफ किया है हमने, वही हमको दिखने वाला है, और वही हमारा चेतना होगा, और जो हम लोग सोच रहे हैं वही हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसीलिए जो है भगवान यहाँ पे हमको कह रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल करो पहले। तो ये है। और कोई सोचे अगर कि मैं अभी तो ऐश कर लेता हूँ तो बाद में देख लेंगे, तो भी नहीं होगा। जैसे अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, से फॉर एग्जांपल रसगुल्ला, वो बोला चलो मैं रसगुल्ला खाऊं, तो कितना खा पाए? 2, 4, 6, 8, बाद में बस 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 मेरे को और नहीं चाहिए। तो ही डजंट इवन हैव द कैपेसिटी।
एंड इफ यू सी अदर एनिमल्स दे हैव मोर, उनकी जो इंद्रिय तृप्ति की क्षमता हमसे कई ज्यादा है, और हमको जो है भगवान ने बुद्धि स्ट्रांग दी है, तो वो बुद्धि यूज करके हम लोगों को हमारा जो इंद्रिय संयम है हम लोगों को करना है. सो दिस इज द मैसेज व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस श्लोका नंबर 68. और हम लोगों को अपने इंद्रियों को वश में रख के मन को कंट्रोल करें, और मन को धीरे धीरे हम लोग भगवान में हम लोग लगाएं. तो वी कैन से कि भगवान एक डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं हम लोगों को कि कहाँ पे फोकस करना है हम लोगों को, कहाँ पे जो रूट कॉज क्या है हमारा सारा, जो हम लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड है हम लोग. जैसे साधारणतः बोलते हैं कि बहुत मतलब जो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है ही कैन नेवर बी हैप्पी, उसमें सिर्फ दुख ही आएगा. ज्यादा 10 रसगुल्ला खा लेगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा उसको. लेकिन जो कंट्रोल्ड है he will stay fit. So that is the point we have to that is the message we have to take. तो मैं और एक श्लोका पढ़ता हूँ, श्लोका नंबर 69. just share. हरे कृष्णा. श्लोका नंबर 69 मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए. या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागृति संयमी, तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, तस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः. सा निशा पश्यतो मुनेः. मैं रिपीट करता हूँ एक बार. या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं इस श्लोक में. तो भगवान कह रहे हैं व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर सेल्फ कंट्रोल, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज. यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां. भूत यानी ये भूत प्रेत वाले भूत नहीं है, यहाँ पे भगवान जो है वो सारे जो जीव हैं उनको कह रहे हैं कि सारे जो जीव हैं वो उनको भूत कहा जाता है संस्कृत में. तो जो सारे लोगों के लिए जो जीवात्माएं हैं, या निशा सर्वभूतानां, उनके लिए जब रात होती है, तस्याम जागृति संयमी, तब जो संयमी व्यक्ति है यानी जो कंट्रोल्ड व्यक्ति है या जो भक्त है वो तब जागता है. यस्याम जागृति भूतानि, और जब वो लोग जागते हैं तब ये इसका सोने का समय होता है. तो यहाँ पे भगवान ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो उसके लिए उसका जो इंटरेस्ट है जिस चीजों में, उससे एक मुनि का या एक भक्त का या एक कंट्रोल्ड व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं होता. समझो एक उदाहरण देके, जैसे आमतौर पे लोग जो है 11 बजे के बाद बाहर निकलते हैं, खाना खाने जाना है, डांस बार जाना है या व्हाटएवर. लेकिन जो कंट्रोल्ड व्यक्ति है वो वांट्स टू कंट्रोल हिज लाइफ, इवन मटेरियली उसको फिट रहना है, उसको भक्ति तो दूर की बात, फिट भी रहना है, तो वो आदमी 10 बजे सो जाएगा. वो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वो अपना एक्सरसाइज करे या प्राणायाम करे, योगा करे, जो भी है. सो फॉर मतलब भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं उनका भक्त का मतलब जो है उससे कोई मतलब उसका लेना देना नहीं होता, और उनको जिसमें डिसइंटरेस्ट है इसमें इसका बहुत इंटरेस्ट होता है. जैसे मतलब वैष्णवगण उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कहे कुछ एग्जाम्पल में हम लोग, या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो कितना सारा मतलब पूरे दुनिया में हंगामा होता है. स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अरे ये हो गया, पहला बैटिंग किसका है,
बैट्समैन कौन है, बॉलिंग कौन कर रहा है। ऐसा भक्त है तो उसको कोई कनेक्शन नहीं, कौन जीता कौन हारा, चाहे पाकिस्तान जीते इंडिया जीते, कोई भी बैटिंग करे उसको कोई लेने देने नहीं। सो वैसे ही मतलब जो है ये जो विषय जो है दोनों के, एक जो अभक्त है उसका इंटरेस्ट अलग है और एक जो भक्त है उसका इंटरेस्ट अलग है। ये पॉइंट यहाँ पे भगवान यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनका। जैसे देखें तो जो बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो इन सब चीजों में अब कंट्रोल्ड पर्सन या एक मुनि जो है उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। तो ये है श्लोका नंबर 69 से हम लोग मैसेज लेते हैं। मैं और एक क्विकली श्लोक लिखता हूँ, श्लोका नंबर 70, एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 70। आपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठम् हरे कृष्ण। आपूर्यमानामचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापव प्रविश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। ट्रांसलेशन पर्पट बाय जैन विशेष भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. मैं एक बार इसका हिंदी में भी पढ़ता हूँ अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि हमने देखा माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करके भगवान में लगाना है, और ये जो हमारी इच्छाएं हैं इसको दबा के रखना है। तो इच्छाएं मतलब विल टू फर्दर गो इन डीप हम लोग देख सकते हैं दो प्रकार की इच्छाएं। एक जो है बेसिक नेसेसिटीज की होती, जैसे मुझे खाना खाना है, दैट इज नॉट ए बिग थिंग, दैट इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन मुझे एक बड़ी लिमोजिन चाहिए, या मुझे एक 4 स्टोरी विला चाहिए। सो यहाँ पे ये इस बात को भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपनी जो डिजायर्स हैं, मतलब भगवान बोलते हैं, मतलब आचार्य गण को बोलते हैं कि भगवान हमारी नीड्स पूरी कर सकते हैं, ग्रिड्स नहीं। तो नीड और ग्रिड में क्या फर्क है हम लोग को समझना चाहिए उसमें। और ये जो इच्छाएं हैं ये नेचुरल है, और यहाँ पे भगवान बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं समुद्र का। आप लोगों ने सबने ऑब्वियसली समुद्र देखा होगा, ओशन। तो ओशन का जो लिमिट है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंड वी नो फ्रॉम साइंस ऑल्सो, शास्त्र भी कहते हैं
जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी नदियां हैं वो उसमें हमेशा एंटर करती रहती। सारों का जो स्तोत्र कहीं पे होता है, बट इट कीप्स एंटरिंग द ओशन। बट हमने कभी नहीं, और ऐसा नहीं मतलब थोड़ा सा 1-2 लीटर नहीं, करोड़ों करोड़ों लीटर पानी उसमें जो है एंटर होते रहता है, बट हमने कभी नहीं देखा समुद्र जो है अपना बाउंड्री छोड़ के बाहर निकल आ गया। वो मतलब पहले एक एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक था, सडनली जो है वो निकल के वो उस शहर को, सुनामी इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ नेचुरल कैलामिटी, बट वी नेवर सी ओशन क्रॉसिंग इट्स बाउंड्री। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो ऐसे इच्छाओं का जो नदियां हैं, दिस डिजायर्स, इट कीप्स ऑन पोरिंग, ये आती रहेंगी, लेकिन अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया हम लोग, तो देन जो है विल बी इन प्रॉब्लम। हम लोग को एक ओशन की तरह होना चाहिए कि चाहे जितनी भी अच्छा है, वी आर पीसफुल, हमें उससे कोई ये नहीं है। तो हम लोग को उसको कंट्रोल करना है, उसको हमेशा, और नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई। अगर हम लोग उसके पीछे, जैसे यहाँ पे कहा गया कि इच्छाएं तो आती रहती हैं, अब मुझे गुलाब जामुन खाना है तो उसके पीछे भागे, मुझे ये करना है उसके पीछे भागे, ये मूवी आ गया, पठान आ गया, मुझे पठान देखना है। तो हम लोग कीप फुलफिलिंग ऑल आवर डिजायर्स, सभी इच्छाओं को पूरी करने जाएंगे तो हम लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं, अगर हम लोगों को पढ़ाई करना है या हमको कोई बिजनेस करना है, तो वी हैव टू स्टे फोकस्ड। ये मेरा फोकस है, मुझे इसी लिमिट में रह के काम करना। उस समय कहीं पे कुछ आ गया, जैसे बच्चे का एग्जाम है, कोई बोले अरे चल यार पठान मूवी आई देखने चल, तो ही विल नॉट इमीडिएटली रन। उसको पता है कि मेरा ये बाउंड्री है, मेरा एग्जाम है, आई कैन नॉट गो। तो वो एक जरूरी है हम लोगों को कि नॉट स्टार्ट रनिंग एवरी टाइम, कोई भी इच्छा होगी उसके पीछे पूर्ति करने के पीछे भागे हम लोग। वी नीड टू कंट्रोल दैट। एंड जो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है ओशन का, ओशन की तरह हम लोगों को रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं भगवान यहाँ पे, तो अगर हम लोग याद करें तो जो 54th श्लोका में अर्जुन पूछता है कि एक स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसे बिहेव करता है, तो वो वहाँ पे उसका बिहेवियर क्या आता है। एक जो स्थित प्रज्ञ है, एक जो फोकस्ड व्यक्ति है, भक्त जो है, उसका क्या लक्षण, तो बोलते हैं ये उसका लक्षण है कि वो डजंट रिएक्ट इमीडिएटली। कोई इच्छा है तो अरे मुझे ये करना है, मुझे ये मूवी देखना है, मुझे ये खाने का मन हो रहा है, मैं ये खा लेता हूँ। ही विल नॉट कीप फुलफिलिंग ऑल हिज डिजायर्स। तो ये उसका कनेक्शन है। जो 4 प्रश्न पूछे थे, तो उसमें से एक प्रश्न ये था कि हाउ डज ही बिहेव, सो दिस इज हाउ स्थित प्रज्ञ जो पर्सन बिहेव्स। तो ये इस श्लोक में आता है। एंड या ओके, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और आपका किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विशाखा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। Long time. I apologize for that, but the class was nectarian. I have been hearing your classes offline also. Thank you, Mata ji. I think Karishma Mata ji was also here. I think she just left. I think she came today. Oh, okay. Yeah, I did see her. So I think we are open for questions now, है ना? Yeah. If anybody has any questions or comments or doubt, मुझे इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करनी है, चलो आप लोग नहीं पूछते तो मैं पूछता हूँ। Why should I not fulfill my desires? Yes, Mata ji. Go ahead. Yeah, Mata ji. Yeah. ये वाला श्लोक मैंने आई थिंक 4th या 5th टाइम मैं ऐसे डिटेल में सुन रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मुझे जाके ये थोड़ा सा समझ में आया है।
So the first time I read, I was like, okay, हाँ, but वो, the really every time you hear it, only you are getting better at understanding. मुझे Yeah. नहीं समझ में आया था. Today it struck me that वाकई the ocean does not leave its borders. Yeah. That although I read it so many times, but it is such an apt example. That Yeah. example cannot be a better example than this. That don't run after your desires at all. वो आए तो उनके पीछे मत भागो और बिल्कुल स्थिर खड़े रहो एज इफ इग्नोरिंग देम. Yes, yes, yes. एंड थकोगे भी नहीं और निराश भी नहीं होगे. दोनों ही चीजें. Just like the ocean, and it makes so much sense. I mean, I'm amazed at the examples that Krishna is giving from our Yeah. material world only to Arjun to help us understand. So, Yeah, thank you, Mataji. And the more we run after the fulfilling our desires, the more we will be distracted. So, and हम लोग देखते हैं भगवान कई जगहों पे ऐसा उदाहरण देते हैं कि कभी नाव का उदाहरण देते हैं, कभी कछुए का उदाहरण देते हैं. सो ही इज कनेक्टिंग द फिलोसफी. जैसे ऐसे नहीं बोल दिया. इट्स ए वेरी गुड टीचर. कोई टीचर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? ही इज द बेस्ट एग्जांपल. लाइक ना, मतलब एक एक उदाहरण के साथ में बच्चा समझ जाए. So yeah, it's a very nice example of the ocean also. Thank you, Vishaka Mataji. Veji Mataji has something to say. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Vishaka Mataji. Prabhu, one realization and then one question. Okay. So the realization is, I really like the connection that you made, about a runner who's running the marathon, and the last few minutes, how he pushes himself. Oh, it's not going to come in the end. Oh, abhyas ke karan hi, it'll come for him. So in the same way for us also, that antakale chamam eva, that is possible only if we get into this practice. Just a simple example, even when we fall sick and all that, it is so difficult to keep the mind focused and do a sadhana on a daily basis. Then how are we going to get it in towards the end, when possibly we end up in a coma or whatever? How are we going to do it? So that way, because my dad went through that, so I know the so for me, this abhyas bit, very important. Every day at least a little bit the sadhana has to be done, when the mind is still, when we still know, we are conscious about our mind using the intelligence to do it. So that's the realization that I got. Now the question, thank you, Prabhuji. The question that I have is, so in 2.70, you mentioned that, desires can be of two types. Beautiful example of the, river going into the ocean and not going beyond the boundary. Now, the question that I have is, you said, for basic necessities, it is okay because we have to let him in. So where do we draw the line, Prabhuji? Some we know, because I feel that sometimes there is a gray area where, is it a necessity? Because sometimes, for one person, it may be a necessity. For another person, it may not be a necessity. So हमें कैसा, पता चलेगा कि ये necessity है, ये need है, या greed है? Hare Krishna, Prabhuji. I think, Mataji, very nice question you have asked, and it depends on individually. Like एक saying है ना कि one man's food is other man's poison. So that is always there. So all this, ये जो भी है, मतलब we have to decide individually for ourselves. Like for somebody, buying a car may be a luxury, but for somebody, he has to travel. Maybe he has to travel 25 kilometers. For some, it's a basic necessity. So it all depends. So we have to decide. We cannot be told this is what it is and you have to do like. No, we have to understand the philosophy को समझना है हम लोगों को, तत्वों को समझना है, and then according to that we have to mold our life. So when we know कि some particular thing is my basic requirement, I need it, whether it may be a big house, maybe a big car,
or yeah, whatever amenities it is. But if it is not required and still we are having it, like I have, like I will say, like if I like to eat 4 rasgullas, if I say that is my basic need. For somebody it may be, oh, he's eating too much. I'm just giving an example. I'm not eating that much. Just an example. So for him it may be too much, but for me this is the basic necessity. But after the fourth, if I'm eating fifth one, then that is a grade. My mind is hankering कि मेरा जो भूख था, मेरा मतलब 4 chapatis I have eaten. लेकिन if I'm hankering for the fifth one, that is the grade. तो वहां पे we have to draw कि बस now मेरा जो basic requirement पूरा हो गया. Now this is great. I don't need this. So there we can draw a border, or we should understand कि इतना हो गया. I should not go beyond this. I think this is how we have to understand. Hare Krishna Mataji. I hope I answered your question. Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Prabhuji, just one more question. Remember, you gave a quiz for us. At some point, can we discuss the answers also? So, Sure. Actually, I wanted to do that, but the attendance was not regular. Sometimes somebody was missing. So if everybody is joining next week, then we can take that, because I want to do that. And I want to also start a new quiz, which I will give in this coming week. I shall publish that because we have covered a lot of shlokas. So that also we will do. And next Saturday we'll try to take up the quiz. We'll take, like, you must be sure having some doubts why this question, this is the answer, not that one. We will do that, Mataji. We'll do that next week. Next Saturday. thank you, Prabhuji. Hare Krishna. We'll spend some time on that, and then we'll go ahead. First, we'll cover the quiz. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Ashish Prabhuji, Puja Mataji, Jaya, you want to say something? Anybody? Prabhuji, for me, it's realization on controlling the senses. I think that is the most difficult part, because हम डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ इच्छाएं आ ही जाती है, बट एक्चुअली इन लास्ट 5-6 लोग जो हमने पढ़े उसमें हाउ वी शुड कंट्रोल. एंड आज जो आपने आंसर दिया कि इट अगेन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इट इज नो कास्ट स्टोन एंड क्रीड के ये फिक्स्ड है, वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन से वेरी करता है. सो दैट इज which I'm trying to really understand and imbibe on a day-to-day life, and somehow it is helping me. And one more thing which I would like to share is I started reading the Krishna book which you shared in the last class. Great. And I think it has been a amazing journey in terms of understanding Krishna, and the essence of Krishna consciousness. Because जब तक हम जानते नहीं है तब तक हम उस चीज को, I mean, in my case, it becomes difficult to really take it to the heart. So जैसे हम एक क्लास में बात कर रहे थे कि मुझे मेरे लड़की के लिए बहुत लगाव होगा. So same way I have to know Krishna, first to really understand his philosophy. Correct. And I think in 1 week I've read couple of chapters in that Krishna book, and it is really bringing me closer. So I've been doing Krishna puja since so many years at my house, but I mean real essence of what Krishna is, is really. So a big thank you to you कि आपने वो suggest किया था last class में. और I'm patting my back also कि मैंने वो effort लेके चालू भी किया पढ़ना. Otherwise हम अपने day to day life में we get so busy के as I said कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस सिर्फ सैटरडे को 11:30 से 12:30 तक ही होता है. उसके बाद we get lost. So I'm trying to imbibe that culture. Great. And I think it is helping understanding the philosophy. Actually वही है ना कि देखो, अगर जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि किसी लड़के को बता दे तुम्हारी मंगेतर है, इससे तुम्हारी शादी होने वाली,
उसको पता ही नहीं वो दिखती कैसी है, गोरी है, काली है, लंबी है, वो क्या है। तो ही इज नॉट बी एबल टू, वो कनेक्शन नहीं बना पाएगा। लेकिन जैसे उसको फोटो दिखाते हैं, वो ही गेट्स अट्रैक्टेड। और फिर जब नेक्स्ट टाइम वो जब उससे मिलता है, उससे बात करता है, तो जितना वो पर्सनली समझना शुरू करता है, उतना ज्यादा उससे बॉन्डिंग उससे शुरू हो जाता है। तो वैसे ही पूजा जब हम करते हैं, तो नॉर्मली इट्स ऑल मैकेनिकल, कोई भाव नहीं होता, कोई भक्ति नहीं होता। बस है ओम जय जगदीश, अरे हम घंटी बजा दिया, टक 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 घुमा दिया, अपना सब रखा, सीधा भागे। मन जो है हमारा, वो सब घंटी घुमाते हुए, पूजा करते हुए भी जो है, ऑफिस में क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, माइंड इज नॉट फोकस्ड, विच इज नॉट करेक्ट। तो ये माइंड कब कनेक्ट होगा? जब हम उस लड़की को अच्छी तरह जानते हैं, उससे बात करते हैं, उसका क्या मूड है। तो जब भगवान कैसे दिखते हैं, उनका क्या मूड है, जब पता ही नहीं, तो हम लोग कैसे कनेक्शन बना पाए? सो इसके लिए पूजा या भक्ति करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। एंड दिस बुक प्रभुपाद व्हाट हैज गिवन इज रियली वेरी वंडरफुल एंड बहुत जरूरी है ये। सो थैंक यू प्रभु, आपने चालू किया। हरे कृष्णा। या पूजा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जस्ट मैं यही सोच रही थी, जब भी मैं चैंटिंग करती हूँ, माला जप करती हूँ, तो शुरुआत में तो हम सिर्फ कृष्णा को ही माइंड में रखते हैं, उसी से शुरुआत के, पर बीच बीच में डिस्टरबेंस जरूर होता है, हमारा माइंड भटकता जरूर है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी पूरा टाइम हम कृष्णा के बारे में ही सोचे और वो करें। तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हालांकि शांत प्लेस पे ही करते, अलग रूम में ही करते, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो ध्यान भटकता ही है हमारा। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी आपका। और जैसे अभी आशीष प्रभु जी भी बोल रहे थे कि हमारा सेंसस पे कंट्रोल जो है वो इतना इजी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इतना आसान नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम कई वर्षों से नहीं, कई जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं हम लोग। तो हमारा मन जो है हमेशा इसके लिए डाइवर्टेड रहता है, फोकस नहीं रहता। लेकिन हम लोग को है ना, बस वही है, भगवान भी जब अर्जुन को बोलते हैं, तो अर्जुन बोलता है कि मैं इसको मन को वश में नहीं कर सकता। बोलता है अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करना है तुम्हें, और थोड़ा सा वैराग्य, उससे थोड़ा अटैचमेंट। तो आदमी जब पूजा करना शुरू करता है, जैसे चैंटिंग की बात करें, हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो मन में ऑब्वियसली उसी टाइम पे, मुझे पता है, एक मेरे एक वरिष्ठ भक्त थे, एक सीनियर डिवोटी थे, वो बोलते थे कि वो जब जप करने बैठते थे, तब भी सारा उनके दिमाग में पॉइंट्स आना शुरू हो जाते थे, अरे ये बाकी ये। और बोलते कभी कभी, बोलते जब मेरा मन डिस्टर्ब रहता था, मैं नहीं सोच पा रहा था कुछ, तो उस टाइम पे मैं जप करने बैठ जाता। मुझे पता है मैं जप करने बैठूंगा तो सारा याद आना शुरू हो जाएगा। तो इस हमारा माइंड का नेचर ही ऐसा है, वो उसका काम है हमको भटकाना। तो बस वही है कि हम लोग को अभ्यास करना है हम लोग। और बहुत अच्छा वो कबीर जी उदाहरण देते हैं, रसरी आवत जावत शिल पर परे निशान, अभ्यास करत करत जड़ मत हो तो सुजान। तो रस्सी जो होती है कितनी नाजुक होती है, कितनी पतली होती है, लेकिन वो जो कुएं में से जब पानी निकालते हैं, आती जाती पत्थर, दैट इज सो हार्ड। लेकिन वो रस्सी आते जाते उस पत्थर को भी काट देती है। सो हमारा वो अभ्यास जो है, तो हमारा जो इतना पत्थर की तरफ मन है, वो अभ्यास करते करते उसको काट देगा एकदम श्योर। तो वो अभ्यास करना है थोड़ा सा, और वैराग्य। अगर हम किसी चीज की तरफ कुछ आकर्षित हो रहे हैं, तो इमीडिएटली वी हैव टू रिट्रैक्ट, वो कछुए की तरह। वो अगर हम लोग ये दो चीज अगर प्रिंसिपल अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो आई थिंक स्लोली स्लोली विल बी एबल टू। एंड माइंड इज नॉट सो इजी। अर्जुन जैसे इतने भगवान के बड़े भक्त हैं, वो ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल, तो हम लोग को क्या बिसा था। सो इट्स नॉट इजी जॉब, बट या वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, ये बोल सकते हैं। एंड प्रभु हरे जी, कृष्ण। जस्ट टू ऐड, आई थिंक मुझे लास्ट वीक, एक वीक में यही डिफरेंस फील हुआ मैंने से अभ्यास। आई थिंक आप स्टडी करते हो, जब रीड करते हो, then you are able to consciously control at that particular point of time when you're something is diverting. नहीं तो हम Yes. एक्सीडेंटली नहीं कर पाते, बट जब हम ना, एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, जैसे मैं कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूँ कि हर एक मॉर्निंग में 15-20 मिनट्स कुछ पढूं, देन या अगर कुछ सिचुएशन भी आती है, देन आई इट ऑटोमेटिकली आई मेक दैट एफर्ट टू रिमेन काम, नॉट टू रिएक्ट। So I think that is where
दिस इज हेल्पिंग टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल इज नॉट टू रिएक्ट. अगर हम रिएक्ट करते तो मतलब इन सेंसेस आर कंट्रोलिंग अस रादर देन वी कंट्रोलिंग अवर सेंसेस. आई रियली एक्सेप्ट कि स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने को आई मीन इट रियली जॉइन्स द डॉट, कि हम कैसे उसको रियल लाइफ में एक्शन में लेके आए. अदरवाइज थोड़ा थियोरिटिकल हो जाता है. स्टडी के साथ मेडिटेशन चांटिंग करो तो इट प्रॉब्ली कनेक्ट्स, इट्स अ ब्रिज which will help you move ahead. एंड वेरी नाइस पॉइंट. और इसके लिए हमारा स्टडी जो है बहुत जरूरी है. हम लोग, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो. प्रभुपाद जी कितने सारे छोटे छोटे बुक्स है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा लेसन्स भरा है. वो जो हम लोग स्टडी करते हैं तो ही हमारी समझ में आएगा. हमको खाली बस हम लोग बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम लोग सोचें कि हम लोग को भक्ति करना है तो नहीं होगा. हमको पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना पहले. जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमको पता ही नहीं. जैसे एक उदाहरण दे, जैसे आदमी कोई बाहर जा रहा है और उसने सिर्फ मार्शल आर्ट्स की मूवीज देखी है, तो उससे वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा. ये हैज टू एक्चुअली लर्न. उसको जो भी है, उसको या स्विमिंग है या मार्शल आर्ट्स, उसको सीखना पड़ेगा. और वो जब उसको अप्लाई करेगा प्रैक्टिकली, तभी उसको समझ में आएगी प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ. तो that learning is important and practical application is most important. So this we have to do. So thank you, Ashish Prabhuji. Hare Krishna. Yes. And just before winding up, Vishaka Mataji, I'll request you to say something or add some points. Yes, Prabhu. I just request you to add some points or something if you want. Actually, you've covered everything, Prabhu. I was not even able to attend the whole class, but Abhyas hai na to kaunteya. As you were speaking and as I heard these verses yet again from a senior Vaishnav like you, थोड़ा सा मुझे डर लगा, इन द सेंस कि हमारे पास बहुत कम टाइम है अभ्यास के लिए भी. जो हमारे हेल्दी प्रोडक्टिव इयर्स हैं वो बहुत कम है, तो हम एक भी दिन उसमें मिस नहीं कर सकते फॉर प्रैक्टिसिंग. चाहे 1 घंटे की प्रैक्टिस, 2 घंटे की प्रैक्टिस है. जैसे मैं अभी सोची थी, अच्छा मैंने घर शिफ्ट किया है तो मेरे को बहुत काम है तो मैं ये क्लास नहीं अटेंड कर सकती. नोबडी केयर्स कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है. यू कैनॉट मिस योर साधना. आई मीन आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि घर में तो उथल पुथल होती रहेगी, कभी कुछ है कभी कुछ है, बट आपके पास बहुत कम 15-20 साल शायद है टोटल इन आवर लाइफ ऑफ सपोजिंग अगर हम 80 साल तक भी जिए तो प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम एक भी दिन ना मिस करें श्रवणम का, कीर्तनम का और इसे पढ़ने का और सुनने का, क्योंकि अंतकाले ना नो गारंटी कि हमें यही चीज याद आएगी या नहीं. सो अर्जेंसी है. मुझे ये सुनकर रीइंफोर्स हुआ देयर इज अ वेरी ग्रेट अर्जेंसी. वी कैन नॉट आराम से सैटरडे संडे को करते हुए नहीं कर सकते ये. वी हैव टू बी इट हैज टू बी एवरी डे 365 डेज एंड बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि वाकई प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए, मैराथन के लिए प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए, और समय हमारे पास नहीं पता है कितना है, तो हम समय को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. वी डोंट नो हाउ मच. मैराथन रनर्स को तो पता है इस दिस डेट को हमारी मैराथन है एंड दे नो एग्जैक्टली हमारे पास कितने दिन है प्रिपरेशन के लिए. हमें तो वो भी नहीं पता है. हमको नहीं पता है बिल्कुल. तो वी हैव टू बी वेरी रेगुलर with to be whatever. serious on the Very topic. serious and very regular. Yes. Yes. Very good. बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रियलाइजेशन था. So thank you for sharing that. Not really. Hare Krishna. Hare Krishna. अनुष्का ने भी मैसेज भेजा था कि आज वो नहीं ज्वाइन कर पाई. आई थिंक मे बी शी विल ज्वाइन नेक्स्ट वीक. She is also one nice serious student who sincerely hears. I hope she also joins next week. Okay.
तो थैंक यू एवरीबॉडी